नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्माणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का वोल्टनिक मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजा गोपालन सर, 1st and 2nd March, Constitution Club of India. Raja Gopalan sir will be saying vanakkam to all our guests, and he'll be there meeting with us. Periyanna, registrations are finishing very fast, and I would request my viewers कि जल्दी जल्दी कर लीजिए because we're going to close it probably in within 4-5 days. We're going to close the registrations, and उसके बाद हम अपनी पूरी जोश और तैयारियों में लगे रहेंगे। जो लोग मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, गायत्री को, आपकी बहन बेटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं, मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, वो सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम लोग एक वॉलंटियर्स का ग्रुप भी बनाएंगे। कुछ लोगों ने ईमेल्स डाली हुई हैं, सो विल बी फिल्टरिंग आउट पीपल कि मतलब हम उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और कैसे हेल्प ले सकते हैं। वेरी सून यू विल सी that you will be receiving mails from our end. और जो सपोर्ट करना चाहते हो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। Periyanna, what a day it was, 8th of February 2025, and 27 साल बाद घर वापसी, या फिर मैं बोलूंगी बीजेपी की वापसी। जी। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ईशानां जगदोत्स वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यभागसिकां तक्षान् संवर्धनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवैवां पद्मास्तनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्. This stanza is to give prosperity to each and every viewer of Gayatri Devi and alternate media. I prayed for their success, and also I prayed for their welfare. I prayed for the lot of money. Dabbu baga vachindi. Panam nariya varum. All Tamil and Telugu words. Very, very, very rich people you will be. With that we start. Yesterday was a very, very grand day. I was in Times Now and Times Now Now Bharat with Navika Kumar. She got a threatening call from Mr. Arvind Kejriwal's office that Sheesh Mahal का story आपने पढ़ा है, like that बहुत गुस्सा में बोल रहा था, कोई 2-3 लोटा लो, seriously. And the correspondent was arrested 1 month before, no? Yes, and they also arrested Times Now people when they were in Punjab also. They were in Two times Punjab. Times Now people were harassed by Arvind Kejriwal party. Navika Kumar was really, not rattled or worried, but she said this man will create unnecessary problem if he becomes the chief minister again. But by God's grace, and moreover, Navika Kumar has become a grandmother. With that baby brought a luck to her. Very interesting. Now, as we speak, Gayatri ji, Sahib Singh Verma's son Pravesh Verma met LG Vivek Saxena just now, as we are talking. So he may be the chief ministerial pace. We started, the hangout. You said about the daughters of Sahib Singh, that is Pravesh Verma's daughters are very, very articulate, acha bol rahi hai vagera. And they are the torchbearers of BJP, future BJP. And they worked very hard in the constituency of New Delhi. So therefore, they know the nuances. Second thing, मुझे लगता है आने वाले दिन में क्या क्या होने वाले हैं, you have to wait and watch. So ये सारा पक्का हरियाणा जाट का है सारा. Sahib Singh Verma was very, very tall person, and he built BJP like anything from the scratches. Therefore, मुझे लगता है ये तीनों बेटा बेटी, 2 बेटी 1 बेटा साहिब सिंह वर्मा का grandsons, granddaughters together. With that, we start our video. Where is Rahul Gandhi this morning? I will play the video of Sahib Singh Verma's daughters, and they're very articulate about a lot of things, and they did very hard campaigning for their father, obviously. Not Sahib Singh Verma, sorry, Parvesh Verma. Do you think that your father would be the apt choice for the CM position, CM chair? If I'm being completely honest, my dad for the past 20 years, I think, the majority of his political career, the guidance that he has received has been under the BJP party. Whatever the leadership has asked him to do, he has done it, and he's done it well. So whatever they have in mind in regards to what he is to hold, we will accept it, and we will accept it very happily, and we will work on it for the next 5 years. As for the chief minister race, you're asking the wrong people. I think the right people are the people who have formed the government. At the helm, you have
our Prime Minister, Mr. Modi ji, you have GP Nadda ji, you have Amit Shah ji. So I think those will be the right people who will answer these questions. I think right now, this might be a little biased crowd for you. All right. Do you think that your father? जी, she is very polite, very elegant, she is very beautiful and she is very articulate. इनके Very, very कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उद्धव ठाकरे की बात करें तो मेरा बापू ही बनेगा चीफ मिनिस्टर। अगर आप और भी ये कई चीज- सारे लोगों की बात करें जी, लेकिन ये चीज इतनी छोटी छोटी उम्र 20 साल में इतना अच्छा बोल रही है, अच्छा कॉन्वेंट एजुकेटेड पर्सन ये, लेकिन ये बीजेपी में चलता नहीं है इसे, जो फादर का प्रोजेक्ट करना वगैरह, ये अमित शाह साहब ने शायद, मुझे पता लग रहा है, किसी को जो बेटी बेटा से बोला है बहुत नहीं बोलना, बिकॉज दे शुड नॉट बिकम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी वन ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। ये भी उसको खिलाफ जाएगा, लेकिन ठंडा होना चाहिए, बहुत ये जंप नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, why Mr. Sahib, this Parvesh Verma met LG today? After Nadda and Amit Shah met, without their permission, he would not have gone and met him. There are 3-4 issue है मैडम। स्वेरिंग इन सेरेमनी 18 तारीख शायद होगा और 9 दिन बाद। प्रधानमंत्री 16 तारीख वापस आ जाएंगे, 15 तारीख शाम को। लेकिन 16-17 अच्छा दिन है, बाकी चीफ मिनिस्टर 21 चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, 21 चीफ मिनिस्टर। बड़ा जबरदस्त रामलीला ग्राउंड्स में शपथ ग्रहण होगा। इट्स गोइंग टू बी बिग शो एनडीए का। सेकंड, मुझे लगता है ग्राउंड में शपथ ग्रहण होगा जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की थी। मतलब घर में घुस के मारेंगे लिटरली, सबको और कोई जगह नहीं मिली थी। ये तो गलत बात है। जले पे नमक छिड़कते जा रहे हैं, तेजाब मिर्ची सब छिड़कते जा रहे हैं जी। ये जिलेबी भी बनेगा, नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं है इसको, एकदम ऐसे करेगा, देखते जाइए। अच्छा, सेकंड, आज सुबह मैडम 8 बजे करीब राहुल गांधी ने गाड़ी लेकर के इधर उधर निकलने शुरू कर दिया विदाउट पुलिस एस्कॉर्ट। कहाँ गया है? कोई उनकी बीमार है हारने के बाद, नहीं तो क्या है, उसको लापता है क्या है, नहीं तो वियतनाम गया है, लंदन गया है, भगवान जाने। बट 8 बजे अकेले गाड़ी लेकर के गया है। उनकी दामाद सिंह एंड राहुल गांधी इकट्ठा दोनों लोधी रोड में सुबेरे सुबेरे 2 व्हीलर सॉरी मोटरसाइकिल चलाते थे, याद है ना आपको पुराना टाइम पर। लेकिन अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, he cannot drive the car, which is a very high position। लेकिन इनके पिताजी राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर भी गाड़ी चलाते थे। गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधान में चलाना है, ठोकना नहीं है, ये सारा चीज है। लेकिन राहुल गांधी का लापता है, पता नहीं है वेयर डिड ही गो। शाम को आ जाएगा, कल पार्लियामेंट है, कल पार्लियामेंट का लास्ट दिन है, वेट करके देखेंगे। आप अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए हमारा पास। 3-4 ब्रेकिंग न्यूज हमारा पास है, मैं सारा बताना चाहता हूँ। बीजेपी में बड़ा खुशी माहौल है मैडम जी, गायत्री, बहुत, क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये तीनों महाभारत में इंपॉर्टेंट है। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, ये तीनों मोदी के हाथ में है। अभी महाभारत मोदी के हाथ में आ गया। दैट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो योगी भी है, नरेंद्र मोदी भी है, हरियाणा में चीफ मिनिस्टर भी है। सो इट इज वेरी ट्रायम्विरेट, तीनों बढ़िया है। सो राहुल गांधी कहा जा रहा है या तो वियतनाम गए हैं या लंदन गए हैं। He's gone on a one-day trip and we cannot confirm, क्योंकि हम उनके सेक्रेटरी तो पता, फोन तो उठाते नहीं है, उनके लोग तो बताते नहीं है कि कहाँ गए। बट कहा जा रहा है कि he is left on one-day trip and आ पाएंगे, 18 घंटे ट्रैवल में हो जाएगा। लेकिन किधर गया है ये नहीं पता लगा जी। फिर ना एक और है, मैं ये भी सुना था, जो उनकी जो 15 दिन बीमारी थी, अभी बीमार से हटके हम लोग तो प्रेयर्स किया था उनकी जल्दी स्वास्थ्य ठीक होने का पिछले हफ्ते, लेकिन क्या बीमारी पता नहीं लग रही, अभी ठीक हो गया। लेकिन सोते टाइम पर वो तकिया को मारता है, सुना मैंने, ऐसे ऐसे कोई गुस्सा से क्यों, हर गया क्या? नहीं तो बीमार खत्म हो गया, पता नहीं लग रहा मैडम।
सो पेरियाना, जो सुनने में आ रहा है कि आतिशी हैज रिजाइन, बट इंडी अलायंस को अब लीड कौन करेगा, उस पे एक बहुत बड़ा टसल आ गया है। ममता बनर्जी लीड करेगी। अखिलेश यादव एंड जो अरविंद केजरीवाल दोनों मिल करके वो बोल दिया है तो नहीं चाहिए। मिस्टर शरद पवार ने इंडिया अलायंस टूट रहा है जी, इंडिया अलायंस टूट रहे, शरद पवार ने बोल दिया है अखिलेश यादव नहीं तो ममता बनर्जी करेंगे, क्योंकि प्रदर्शन किया था राहुल गांधी ने तमिल जो इंडिया अलायंस में नेतृत्व करने के लायक नहीं है करके बोल दिया। तो देयरफॉर मुझे लगता है इंडिया अलायंस टूटेगा, नए नाम पर आ जाएगा, नए चेहरे होगा। ममता बनर्जी दिल्ली आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, और 3-4 साल है इलेक्शन का। आने वाले दिन में इंडिया अलायंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह शुरू हो गया, क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया। राहुल गांधी एकदम भाग जाता है, विदेश जाता है, कार लेकर के इधर उधर भाग जाता है। शरद पवार का पसंद नहीं है, ममता बनर्जी का पसंद नहीं है। सो देयरफॉर वेट एंड वॉच। हिंदी स्पेस में दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया अलायंस टूट रहे हैं, उनके नए नाम दे देंगे जी। पेरियाना, आम आदमी पार्टी भी टूट रही है, आप कह रहे थे कि कुछ एमएलए छोड़ना चाह रहे हैं। 30 एमएलए जो आपको पंजाब से टूट रहे, जो आपने पता होगा एडवर्टाइजमेंट लाइन पर बाई 1 गेट 1 फ्री करके एक एडवर्टाइजमेंट आता है, लेकिन इधर लूज दिल्ली लूज पंजाब ऑल्सो। आम आदमी का एकदम दोनों खतरा जिन पर है। दिल्ली में भी 10 एमएलए इस्तीफा दे देगा, नहीं तो अलग पार्टी बना करके समर्थन दे देंगे साहिब सिंह वर्मा, बेटा प्रवेश वर्मा का। वो लोग जाट लोग हैं। अरविंद केजरीवाल अभी एमएलए नहीं है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गोपाल राय का अध्यक्ष बनाने चाहते हैं विपक्ष का नेता, आतिशी मना कर दिया मैं नहीं आऊंगी करके। सो आने वाले दिन में आम आदमी पार्टी भी एकदम टूटेगा, कितना टुकड़ा होगा भगवान जाने। आतिशी की रेजिग्नेशन, आपने एक चीज, आतिशी रेजिग्नेशन फॉर्मेलिटी है मैडम, ये तो स्वाभाविक रूप से धरना तो कंटिन्यू तो नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज मुझे एक बड़ा सा सीनियर लीडर ने समझाया, जो नई चीज है बिल्कुल 50 साल का देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, ये लाल का दबाव का हरियाणा पार्टी चलते थे, खत्म कर दिया अमित शाह ने। नवाज सिंह सैनी का लगा दिया कोई नया चेहरा, मनोहर लाल खट्टर लगा दिया नया चेहरा। तो आप देखिए आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला खत्म करने के बाद योगी आदित्यनाथ देखो मिल्कीपुर तो जीत गया, 40,000 वोट में जीत गया। लेकिन आने वाले दिन में वो जो अखिलेश यादव को एकदम पतंग उड़ा देंगे मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उसको भी फ्रीडम दे दिया। शरद पवार का दबदबा खत्म हो गया 50 साल का। देवीलाल का बेटा बेटी जो जितना भी है वो सारा हरियाणा में समाप्त कर दिया। अभी देखो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज, मायावती तो है नहीं है, महबूबा मुफ्ती तो है नहीं है पार्टी में सीन में। अभी देखो आखिर में अरविंद केजरीवाल को समाप्त कर दिया। ये क्या दिखा रहे? कल नरेंद्र मोदी का भाषण में भी इंडिकेट किया था, कांग्रेस जितना जितना अलायंस पार्टी से उसको लपट लेती है, सो लपटने का बात यह है खत्म कर देती है। राहुल गांधी ने जो क्षेत्रीय दल में जितना भी इंपॉर्टेंट बात है, तमिलनाडु में देखो इंडिया इज यूनाइटेड कंट्री, इज नॉट कंट्री, इट्स स्टेट्स, यूनाइटेड यूनियन स्टेट्स, ऐसे कुछ नए कहानी ओनरी अरस करके तमिल में बोलने लग गया। उसको पकड़ लिया नरेंद्र मोदी ने, कल भाषण में वो भी इंडिकेट किया। कांग्रेस अर्बन नक्सल नहीं है, अपना क्षेत्रीय दल का जितना जितना बिंदु मुख्य इंपॉर्टेंट है वो अपने आप लेकर के नए रूप में आ रहे। अर्बन नक्सल्स का फीलिंग्स आ गया नरेंद्र मोदी ने। सो देयरफॉर देवीलाल, शरद पवार, ममता बनर्जी, जो मायावती, महबूबा मुफ्ती, ये सबको खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। वन इंडिविजुअल फर्स्ट 2013-14 में कांग्रेस मुक्त भारत बोल करके 3 गांधी को, सोनिया, राहुल, प्रियंका, तीनों को दरकिनारे करके कांग्रेस को समाप्त कर दिया। अभी रीजनल पार्टीज के ऊपर नजर है। सो 2029 में 1 नेशन 1 पोल आने के बाद मुझे लगता है अनदर 20 साल का नरेंद्र मोदी को दबदबा होगी, हिंदू राष्ट्र का दबदबा होगी।
हिंदू राष्ट्र आने में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र इन द सेंस पूरा का पूरा इंडिया में 21 देश में बीजेपी सरकार चला रही है, एक नहीं है, दो नहीं है, 21 देश स्टेट्स में, और बची है 10 में भी धीरे धीरे पकड़ेंगे। अभी योगी आदित्यनाथ और 5 साल का तो निश्चित है। यूपी में 27 में इलेक्शन है 2027 में, वो 2032 से निकल जाएगा। एक स्टेट में आप देखिए नेतृत्व में परिवर्तन आने वाले हैं। दो सीट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्कीपुर सीट आने के बाद यूपी का जो स्टेट बीजेपी का जितना भी अध्यक्ष पद में है डिस्ट्रिक्ट में, वो सारा परिवर्तन करना चाहते हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ। नड्डा साहब से लंबा बात करके मैंने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको भी भेजा है। योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं यूपी में संगठन में, बीजेपी संगठन में परिवर्तन करने का। यूपी पूरे की पूरे लगता है वो यूपी को ओवरहॉल करने वाले हैं, अपने हिसाब से चीजों को फिट बैठेंगे, और जो परफॉर्मिंग है सिर्फ उन्हें रखें, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है शायद उन्हें वो बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म में खुद भी हो जा रहे हैं। पेरियाना, एक जो साजिश निकल कर आई थी, जो महाकुंभ में लोग स्टैम्पीड कराने की कोशिश कर रहे थे, उस पे हमारे पास कुछ एक अपडेट के ऊपर निशाना है। योगी आदित्यनाथ के पास सारा मसाला है। पुलिस ने उनकी जो कम से कम 200 फोन नंबर से इंटरसेप्ट करके उनकी रिपोर्ट तैयार हो गया। अभी एक हफ्ते में कुंभ मेला खत्म हो जाएगी। उस टाइम पर मिस्टर ग्रेट योगी आदित्यनाथ कितना अड़े हाथ में ले लेंगे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, सॉरी अखिलेश यादव का, देखते जाइए। बहुत बहुत दिक्कत आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए मिस्टर अखिलेश यादव ने यूपी से ढूंढा लोग के लिए दिल्ली लेके आए थे, उसको नजरिया भी मिस्टर योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। तो धीरे धीरे देखने में आपको पता लगेगी मिस्टर योगी आदित्यनाथ इज गोइंग टू फिनिश मिस्टर अखिलेश यादव से निकालेगा। जी, उसके अलावा तो राहुल गांधी को और रेवंत रेड्डी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। बहुत प्रॉब्लम है। रेवंत रेड्डी तो दिल्ली इलेक्शन के बाद सारा सरकार, देखो डीके शिव कुमार दिल्ली में पैसा खेल कर रहे थे, डीके शिव कुमार को हार है। सिद्धरामैया बहुत, कर्नाटका सरकार खतरे में है, तेलंगाना रेवंत रेड्डी सरकार भी खतरे में है, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी की जितना भी आदेश था वो सुना नहीं है। ओबीसी रिपोर्ट का शेड्यूल टाइप रिपोर्ट का असेंबली में रख दिया है, लेकिन पूरा रिपोर्ट नहीं रखा है। केसीआर का भारत राष्ट्रीय समिति भी हंगामा कर रहे थे तेलंगाना असेंबली में। आने वाले दिन में जैसे रेवंत रेड्डी सिद्धरामैया का सरकार खत्म हो जाएगी, पंजाब में सरकार खत्म हो जाएगी, ऑन द टॉप ऑफ इट असदुद्दीन ओवैसी का कितना दबदबाव है नहीं है, सारा डिपॉजिट गया। दिल्ली में 67 प्लेसेस में कांग्रेस डिपॉजिट किया, खत्म हो गया, सिर्फ 3 जगह पर बचा है। सिमिलरली जो भी है, आने वाले दिन में कांग्रेस के को हाथ मिलाने के लिए कोई समर्थन करने का तैयार नहीं है रीजनल पार्टीज, एक्सेप्ट डीएमके एंड जो जेएमएम, एमके स्टालिन एंड हेमंत सोरेन, दोनों राहुल गांधी के पास लगेगा, बाकी लोग टूटेगा। देखते रेवंत रेड्डी भी जाएगा। रेवंत रेड्डी एकदम अचानक बीजेपी में आने का भी संभावना है। जी, एक थोड़ा सा यहाँ से हटकर न्यूज है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। छोटा शकील, जिसको छोटा राजन की जो मृत्यु दंड था उसको रोक दिया गया था हाई कोर्ट के अंदर। अब उसके में दोबारा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में इनको दोबारा वो सुनवाई होगी जिसमें इनका मृत्यु दंड कंफर्म होगा या नहीं होगा, उस पर बहस चलेगी। एज फॉर अस, इनको जिंदा रखना, फालतू में जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। ही डजंट डिजर्व टू बी अलाइव। जो बंदा देश के खिलाफ देशद्रोह करता है उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं होता। ही शुड हैव डाइड लॉन्ग बैक। बट चलिए, हाई कोर्ट ने इनकी डेथ सेंटेंस पे रोक लगाया था। अब उसी पिटिशन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नया वो आया हुआ है और उस पर सुनवाई बहुत जल्दी होने वाली है। जी पेरियाना, ये बॉलीवुड को बहुत ही फर्क पड़ेगा। छोटा राजन का केस फिर शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ये बॉलीवुड में नाचने शुरू कर देंगे। जो सैफ का केस भी ब्रेकिंग न्यूज में देना चाहता हूँ। जी मैडम,
एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में अभी कम से कम 50 नए नए फेसेस के ऊपर केस है। नरेंद्र मोदी दिल्ली इलेक्शन तक वेट कर रहे थे, अभी दिल्ली चुनाव खत्म हो गया, आप देखते जाइएगा केंद्रीय सरकार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सबको ऊपर जाएगा। तृणमूल कांग्रेस, even for that matter Akhilesh Yadav, even for that matter DMK, even for that matter Shivakumar, DK Shivakumar. So ये सारा 50 लोग को तैयार किया लिस्ट, नरेंद्र मोदी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, हरी झंडी दिखा दिया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सबको ऊपर कर दिया। अभी दिसंबर तक कोई चुनाव नहीं है, अनदर 8 महीने का बिहार चुनाव गर्म पकड़ेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन वाइज बीजेपी तैयार है, सरकार की वाइज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तैयार है। निशाना है 2026 में 4 स्टेट में इलेक्शन है, असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला। ये चारों देश में राज्य में जितना भी इनकम टैक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई केसेस ठंडा पड़ा था उसको गर्म करेंगे नरेंद्र मोदी। आने वाले दिन में तमिलनाडु में सरकार को ऊपर बिल्कुल सादा निशाने करेंगे नरेंद्र मोदी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। असल में 3-4 एमपी, 3-4 मंत्री ऑफ एमके स्टालिन और ऑल इन द नेट ऑफ ईडी उसको भी कार्रवाई शुरू करेंगे। दिल्ली इलेक्शन का प्रभाव ऐसे पड़ेगा। देखो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन मार्च शुरू हो रहा है, मार्च में एकनाथ शिंदे का और फडणवीस का जो रिलेशनशिप में कोई करारा आ रहा है, लेकिन अजीत पवार उसको जोड़ने तैयार है। इवन इफ एकनाथ शिंदे 5 एमपी उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे भी ज्वाइन करेगा तो भी मिस्टर अमित शाह का काम कर रहा है। फाइनली स्वाति मालीवाल जो एमपी है, वो एमपी आने वाले दिन में इस्तीफा देकर के फिर इलेक्शन में आ जाएगी दिल्ली से, क्योंकि वो दिल्ली का एमपी है। वी विल वेट एंड वॉच क्या क्या होने वाले हैं। स्वाति मालीवाल आ रहा भी देखे ना जी, हम लोग बोलते बोलते आ गया। राम मंदिर गया है उन्होंने, हनुमान मंदिर गया है, हनुमान मंदिर गए हैं, कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर गया उनको माता जी के साथ। वो इस्तीफा देने वाली है, बीजेपी में ज्वाइन करेगा। जो अमित शाह का ये ड्रामा क्यों पता आपको? बिल्कुल ये सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है, मैडम स्वाति मालीवाल ने वक्फ बोर्ड जनवरी, फरवरी, मार्च कर रहे थे, अप्रैल में वक्फ बोर्ड राज्यसभा में आएगी। उस टाइम पर ये स्वाति मालीवाल दिल्ली से फिर चुन करके बीजेपी में ज्वाइन करके बीजेपी एमपी बन जाएगी। इसका अमित शाह ने ओके कर दिया है। आने वाले दिन में स्वाति मालीवाल का इस्तीफा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्लानिंग चल रही है, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में, वो आगे आने वाले इंपॉर्टेंट बिल्स को लेकर, चाहे एकनाथ शिंदे, मतलब मैं ये बोलूं कि चारों तरफ से गेयर अप कर रही है बीजेपी, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो। राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत चाहिए उन्हें बिग बिल्स के लिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, यूसीसी हो। वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना जी, उसको तो तैयार कर दिया है मिस्टर मोदी। मेजॉरिटी, हाँ, सिंपल मेजॉरिटी नहीं, 2/3 मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। राज्यसभा में बीजेपी की बहुमत आ गया है। बीजेपी का बहुमत में बिल्कुल नरेंद्र मोदी का गाड़ी चलेगी, रोकेगी नहीं है, उसका व्यवस्था कर दिया। आपको याद होगा ओडिशा में 2 एमपी, बीजू जनता दल का एमपी इस्तीफा देकर के फिर वापस आ गया बीजेपी में, सेम पर्सन। ऐसे फॉर्मूला स्वाति मालीवाल को भी शुरू करेंगे। आने वाले दिन में ये सारा नाटक बहुत होगा। अमित शाह का जो आपने डायरी में लिखा है 5-6 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करने का, आने वाले दिन में भी वो शायद एमसीडी चुनाव में क्या क्या करना, अरविंद केजरीवाल एमसीडी को रख करके अटका डालेगा नए चीफ मिनिस्टर का, ये आप देखते जाइएगा। ही वोंट लीव इट। अरविंद केजरीवाल सड़क में आएगा, रोकेगा, सारी के सारी का। ऑन द टॉप ऑफ इट मैं एक चीज कहूं, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल सीएजी रिपोर्ट के बारे में क्यों भाषण देना है? क्योंकि सीएजी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल फंसेगा, 5 केस कर देगा। सेकंड थिंग, यमुना मैया का नमस्ते करने शुरू किया है,
वो 2 साल में अंदर अंदर यमुना ब्रिज को बहुत साफ साफ कर देगा नरेंद्र मोदी, देखने को पसंद लगेगा। वो टॉप ऑफ द एजेंडा में है सरकार के गवर्नेंस के थ्रू। लेकिन पॉलिटिक्स में अमित शाह को हाथ में 5 टॉप प्रायोरिटी है, वो राज्यसभा में और भी 5-6 एमपीस को तोड़ करके लेके आना है। दैट इज द स्ट्रैटेजी। जी, लास्ट पॉइंट पे है ना, ममता बनर्जी अगला क्लोज कॉन्टेस्ट जो है और द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट फॉर भारतीय जनता पार्टी इज 3 स्टेट्स इन फैक्ट। नंबर 1 इज वेस्ट बंगाल, 2 केरला एंड 3 तमिलनाडु। ये 3 स्टेट्स, ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर भी है, हाँ 4, ये 4 स्टेट्स भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे डिफिकल्ट स्टेट्स रहते हैं। मतलब इनको अपनी लिटरली ओपनिंग करनी मुश्किल हो जाती है। और अगर मैं बात करूं सबसे नियरेस्ट इलेक्शन तो 2 स्टेट्स में, तमिलनाडु में नेक्स्ट ईयर 2026 और वेस्ट बंगाल में अगेन आने वाले हैं इलेक्शन। तो मेरे को लग रहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता बनाने की पुरजोर तैयारी चल रही होगी। और पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया है ममता बहुत शांत हो गई है। शांत हो और गए मैं उन्होंने। हाँ नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, I have been a critique of Mamata Banerjee, definitely. But then a lot of things go into making a person. She was the one who cried in parliament stating her saying कि उनका जो प्रदेश है उसमें ये घुसते जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसते जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर्स निकाल कर वो वीडियो देखें। और वो महिला सीएम होकर वो रो रही थी पार्लियामेंट के अंदर। वो सेंटर में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी या अटल बिहारी वाजपेयी की, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी फॉर दैट। बट उसके बाद जो बंदी ने हाथ पकड़ा है, उन्हीं दुश्मनों को ही दोस्त बना लिया कि आज की डेट में शी हैज बिकम अनस्टॉपेबल, उनको रोकना मुश्किल है। शी हैज शेकन हैंड्स विद द डीमंस इन फैक्ट। बट उसको बनाने में भी सेंटर का ही रोल है और मोस्ट लाइकली कांग्रेस, अगर मैं कहूं तो। But she has been one of the most successful women leaders in Bharat. Like it or don't like it, हमारी आइडियोलॉजी के साथ वो मिलती है नहीं मिलती है इज अ डिफरेंट थिंग। बट पेरियाना वो अभी भी अपने उसी घर में रहती है जिस घर से वो निकली है, उसी घर में रहती है, उसी वेशभूषा में, उसी हवाई चप्पल में, उसी व्हाइट साड़ी में। शी इज मेंटेन्ड हर पब्लिक इमेज, पीछे कितना भी करोड़ों का है। यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 मिनट थोड़ा सा पैसा मिला तो हवाई ऐसे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस हवा में उड़ गए, राइट। वो लेडी इज अ वेरी वेरी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन एंड इट टेक्स लॉट ऑफ कंट्रोल and sacrifices to maintain that image. As a woman, I really respect her. But as a politician, I have a different ideology. आपने ठीक फरमाया, लेकिन ममता बनर्जी के बहुत संकटन भी है, बहुत संकट में भी आ गई है। वो जो अभिषेक बनर्जी इनको खिलाफ गया है, अभिषेक बनर्जी वांटेड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी को दबदबा थी, वो भी कम होते जा रहे। मैडम जी आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला था, लेकिन उनकी दबदबाव कम होते जा रहे क्योंकि 15 एमपीस ममता बनर्जी के साथ नहीं है, वो लोग इनको साथ है। सो परिवार में जितना भी जो अलग अलग होगा, लेकिन ममता बनर्जी का फ्यूचर तो बिल्कुल खत्म होने का लगता है। अभिषेक बनर्जी छोड़ेगा नहीं है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर सारा निशाना केंद्र सरकार से है। इसके बीच में सीपीएम ने एक अफवाह उड़ा दिया, ममता बनर्जी आरएसएस लीडर से मिल गया है, बीजेपी भी शांत हो गया वेस्ट बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी भी ठंडा हो गया। जो 27 में कैसे 26 में कैसे बीजेपी आ जाएगा सत्ता में। लेकिन पूरी की पूरी मिस्टर अमित शाह का स्टाइल है, इंडिया अलायंस में ब्रेक कर दो, ममता बनर्जी के आपको हाथ में ले लो, आपको सड़क पे ले लो, जो भी बिल्स पास करना हो वो वॉकआउट कर देगी, एकदम ये सोल्यूशन हो गया। ममता बनर्जी के ऊपर जितना भी केसेस है वो ठंडा में बक्स में डाल देंगे, देखे जाइएगा। तो राजनीतिक रूप में कुछ ना कुछ खेल है चल रहे। नरेंद्र मोदी गवर्नेंस के ऊपर देखेगा, पूरा दिल्ली का नरेंद्र मोदी अपने हाथ में ले लेगा। पॉलिटिक्स में वक्फ बोर्ड बिल पास करना हो, अमित शाह को दे दिया। दिल्ली चुनाव के बाद अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को भी और क्लोज हो गया है। बीजेपी को बोलने वाले जो भी कितना भी है, अमित शाह इज द मैनेजर ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। आप देखते जाइए, आने वाले दिन में अमित शाह के ऊपर दबाव बढ़ेगा। अमित शाह दिल्ली का पूरी की पूरी केंद्रीय जो गृह मंत्री के रूप में
दिल्ली का सुधार करने का अमित शाह का हेल्प बहुत होगी। और जब मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ पार्लियामेंट की, लोकसभा के अंदर 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी वाज द सुपर पीएम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ममता बनर्जी क्राइड इन द पार्लियामेंट साइटिंग द बांग्लादेशी वो रोई है महिला। मैं सिचुएशंस बता रही हूँ कि एक जो बहुत अच्छा एसेट हो सकती थी वो किस तरीके से हथियार हमारे अगेंस्ट में हथियार बन गई। शी कुड हैव बीन अ वेरी गुड एसेट इफ शी कुड हैव बीन हैंडल्ड नाइसली। वो देन इट्स एक तरफ करण भी थे, दूसरी तरफ अर्जुन भी थे। सो हमारे पास सभी एग्जांपल्स मौजूद हैं। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मैं यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3-4 दिनों के लिए ऑन है, उसके बाद ऑफ हो जाएंगी। सो प्लीज गो हरी अप एंड रजिस्टर। नहीं तो बाद में ना सब लोग आप लोग ईमेल डालते हो, गायत्री जी प्लीज चाहिए, व्हाट्सएप डालते हो, फिर गायत्री कहाँ से लेकर आएगी? और गायत्री अकेले मैनेज करिए यार, थोड़ा सा तो सीट भी कम सीट है, अभी तो फुल हो गया, आपको सीट तो कम सीट फुल है। होने, वही मैं कह रही हूँ कि फुल होने वाला है, तो जल्दी कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप ईमेल डालोगे, मैसेज डालोगे और फिर मेरा भी दिल धक धक करता है, इन्होंने अटेंड किया। लेकिन आज की डिस्कशन अच्छा हो गया बीजेपी का अंदर मामले में, जितना भी हम गहरे तरफ से किया है, ये दर्शकों का, गायत्री देवी दर्शकों का बिल्कुल बेनिफिशियल है। मुझे फीडबैक मिल रहा है, गायत्री देवी का वीडियो वायरल होते जा रहे हैं, जो भी हमारा सच में 1-2 दिन के अंदर अंदर भूकंप पड़ेगा, कांग्रेस में भी, इंडियंस में भी। जी, और let's see who is going to be the next chief minister of Delhi. We are waiting and watching, keeping our fingers crossed. We look forward to a reformed, transformed Delhi actually. And मतलब दिल्ली दिल वालों की देखना चाहते हैं अब हम एक्चुअली, हम वैसा देखना चाहते हैं कि अब कैपिटल ऑफ भारत वैसा देखना चाहते हैं। जी, थैंक यू सो मच पेरियाना। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।